بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں بتایا، ابھی بھی وقت ہے نیوٹرلز اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں عمران خان بولے، شہباز گل نے جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا، حکومت چاہتی ہے شہباز گل سے وہ کہلوائیں کہ اس نے عمران خان کے کہنے پر وہ بیان دیا۔ پوچھا جاتا ہے عمران خان کیا کھاتا ہے؟ شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے؟ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے۔ 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے کرپشن کیس کے اندر 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے، ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس بیچارے سے جو کیا ہے، جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتا چلا اس بیچارے سے کیا کیا، ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا۔ ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں، پھر اس کو مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے، اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری، آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا، اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آیا ہو۔ اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ ملک غیر ملکی ایجنٹ سے آزاد ہو گیا، اب خان صاحب کے اندر جانے کا وقت ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے FIA سے عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا، ساتھ ہی خبردار کیا کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس نکلے ہیں وہ FIA میں پیش ہو جائیں، کیونکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں۔ طاقتور آنا چاہیے قانون کے نیچے، تو پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں آنے چاہیے FIA میں؟ کہتے ہیں میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا، اور طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے، تو پھر شہباز گل کیوں جیل سے جانا چاہیے؟ کہتے ہیں میں فرح گوگی کو نہیں پیش کروں گا، وہ بشرا بی بی کہتی ہیں اسلامی ٹچ دو، وہ کہتی ہیں غداری کے ساتھ لنک کرو۔ شہباز شریف ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، اس وقت یہ تمسخر اڑاتے تھے کہ جو آج پمز میں لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ مکافات عمل ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں، آج نقلی آکسیجن لگا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی، آپ نے اپنے تمام کیسز ختم کرائیں۔ اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ اگر نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اپنی انکوائریاں کیسے بند کی؟ فورن فنڈنگ کا غلام ہو وہ ملک کو آزاد کرائے گا۔ ملک آزاد ہو گیا ہے فورن ایجنٹ سے، میڈیا آزاد، ملک آزاد، عوام آزاد ہو چکی ہے۔ اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے۔ جو FIA میں پیش نہیں ہوتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی، FIA میں پیش ہو جائیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، ایک بہت بڑا اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے۔ شہباز گل پر تشدد ہوا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG سے پیر کو رپورٹ طلب کر لی۔ اڈیالہ جیل حکام اور اسلام آباد انتظامیہ سے شہباز گل کی حوالگی میں 5 گھنٹے کی تاخیر پر وضاحت مانگ لی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف شہباز گل کی درخواست پر سماعت۔ PTI وکلا نے جسمانی ریمانڈ معطل کرنے کی استدعا کی تو جسٹس عامر فاروق نے کہا تکنیکی طور پر وہ ابھی ریمانڈ پر ہے ہی نہیں تو معطلی کی کیا ضرورت۔ عدالت نے ملاقات کی استدعا منظور کرتے ہوئے کہا وکلا ملیں مگر اتنا رش نہ ہو کہ باقی مریض ڈسٹرب ہوں۔ تحریک انصاف نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف درخواست دائر کی، جسمانی تشدد روکنے اور جوڈیشل انکوائری کی استدعا۔ عدالت نے پوچھا کیا شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے؟ IG اسلام آباد نے بتایا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ عدالت نے حکم دیا سارے معاملے کی ابتدائی رپورٹ بنا کر پیر کو پیش کریں۔ اڈیالہ جیل کے میڈیکل آفیسر کی بغیر ریکارڈ پیش ہونے پر سرزنش۔ عدالت نے پوچھا شہباز گل نے کس وقت خرابی طبیعت کی شکایت کی؟ جیل حکام نے بتایا کل سپہر 4:15 بجے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے جب ریمانڈ کا فیصلہ آ گیا پھر تکلیف ہوئی، پہلے ٹھیک تھا وہ۔ عدالت کے پوچھنے پر جیل حکام نے بتایا کہ انہیں شہباز گل کے ریمانڈ کی روبکار 4 بجے وصول ہوئی، 9 بجے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے پوچھا 5 گھنٹے تک کیا وہاں چائے پلا رہے تھے؟ اڈیالہ جیل حکام اور ICT کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا اگر جان بوجھ کر عدالتی احکامات میں رکاوٹ نکلی تو توہین عدالت کا نوٹس کریں۔
करेंगे। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्यूटी जज राजा फरूख अली की अदालत में शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। ECG हो चुकी, मजीद टेस्ट भी होंगे। हुकूमती अरकान इमरान खान पर ताक ताक कर वार करने लगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि PTI की एक ही मुकदमे में चीखें निकलने लगी हैं, किसी को तफ्तीश से फ़रार नहीं होने देंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, जब कोई जेल जाता है तो उस पर बगलें नहीं बजानी चाहिए, बारी सबकी आती है। PTI चेयरमैन हुकूमत के निशाने पर। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना जमहूरियत पर हमला है। जब कोई जेल जाता है तो उसमें बगलें नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बारी तो सबकी आनी है। हम यकीन करें नहीं चाहते आपकी बारी है। पहली पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो दूसरों को गद्दार कहती है कि हमारे लीडरान इंसान है, महात्मा नहीं है। जो सियासतदान डायलॉग नहीं कर सकता, अपने सियासी मुखालिफ से बात नहीं कर सकता, अपने मुखालिफ की शक्ल देखने का रवादार नहीं है, सियासतदान नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, किसी को तफ्तीश से फरार नहीं होने देंगे। आप तो फूलों में सोने वाले लोग हैं। आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं, पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, ये कहते हैं नारवा सलूक है, तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा। शहरी रहमान ने दावा किया कि PTI तकसीम की सियासत पर अमल पैरा है। जिस नहज पर इस वक्त तकसीम की सियासत करके चेयरमैन साहब मुल्क को ले जाया जा रहा है वो हम सबके सामने है। घाई जो है बिल्कुल नज़र भी पहले से आ रही थी और उससे अभी लग रहा है कोशिश के पीछे ना हटा जाए। शहरी रहमान का कहना था, पंजाब में सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए 100 अहलकार तब्दील कर दिए गए। मुल्क में सैलाब से तबाही आ गई, उसके मुतालिक कोई नहीं पूछ रहा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। 2 रोज़ पहले कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आज बयान बदल लिया। बोले, असीर रहनुमा शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को जब बताया गया कि उनका दोबारा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया तो वो बेहोश हो गए। काफ़ी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है, शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा। शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। शहबाज गिल साहब पे बहिमाना तशद्दुद हुआ, ऐसा तशद्दुद हुआ कि शायद आप किसी जानवर से भी करना पसंद ना करें और उनको इतना ज़हनी दबाव का शिकार कर दिया गया कि जब परसों कल उनको बताया गया कि आपका जुडिशल रिमांड कैंसिल हो गया है तो वो बेहोश हो गए, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई। रस्सी जल गई पर बल ना गया। इमरान खान बनीगाला से पंजाब हुकूमत की डोरियां हिलाने लगे। मनपसंद अफसरान अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA लगाने के लिए शदीद दबाव डाला। मनपसंद अफसरान की तैनाती न होने पर इमरान खान आग बगूला हो गए। वजीर आला पंजाब को खरी खरी सुना दी। रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही कठपुतली वजीर आला। पंजाब हुकूमत की डोरें बनीगाला से हिलने लगी। इमरान खान मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए शदीद दबाव डालने लगे। जराए बताते हैं, अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA न लगाने पर वजीर आला पंजाब को फोन पर झाड़ पिला दी। अहमद अजीज तारड़ बुज़दार सरकार में DG LDA थे और जो पंजाब हुकूमत खत्म होने के बायस मास्टर प्लान की आखिरी वारदात मुकम्मल नहीं कर सके थे। मौसूफ पर एहसन जमील गुज्जर और फराह खान के फ्रंटमैन होने का इल्ज़ाम है। फयाज महल का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं। बुज़दार दौर में तकर्रियों और तबादलों में बड़ी फयाजी दिखाई और अब इन्हीं साहब को LDA मास्टर प्लान मंसूबे की अधूरी वारदात मुकम्मल करने के लिए डायरेक्टर जनरल लगाने की कोशिशें जारी हैं। मनपसंद तैनातियों का हुक्म ना आया तो इमरान खान ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन तक PTI गायब थी। जब शहबाज गिल ने धमकी दी कि वो अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ लेकर जाएंगे, तो PTI की दौड़ें लग गईं। अब ये परेशान हैं। इमरान खान परवेज़ इलाही को चपड़ासी जितनी हैसियत भी नहीं देते। लगता है कि गोगी पीरनी का अधूरा मिशन परवेज़ इलाही पूरा करेंगे।
انہیں انقلاب لانا تھا، جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا وہ اسپتال میں آئی سی یو میں جا کے لیٹ گئے۔ عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش، معصوم خواہش کہ شہباز گل چونکہ کچے چچے کھول دے گا عمران خان کے، اس راز کے اوپر اب عمران خان کو شہباز گل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنی پرواہ ہے۔ وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا۔ پرویز الہی جس کو یہاں پر وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا، اس بیچارے کو جھاڑ پڑتی ہے فون پہ چیف منسٹر کو، یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ چپڑاسی جتنی اوقات نہیں دے رہے پرویز الہی کو، اس کی سرزنش کی جاتی ہے اور سرزنش کرنے کے بعد ان سے اپنے مرضی کے احکامات لیے جاتے ہیں، اپنے کرندے فٹ کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جہاں زمین کا ذکر آتا ہے۔ گوگی پنکی کا مشن ادھورا، پرویز الہی کرے گا پورا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آئے، حکومت کو 10 ستمبر تک مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دے دی، کہا حکومت مستعفی نہ ہوئی تو بات جلسوں سے آگے نکل جائے گی۔ ہیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹا ہی رہے گا، وہ اترے گا نہیں، اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملک گیر تحریک میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملک گیر تحریک کا حصہ ہے۔ یہ جو تحریک ہے یہ 10 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سپتمبر تک اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر 10 سپتمبر تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائے گی، اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں احتساب کے نام پر قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے 35 کروڑ روپے پھونک ڈالے، جبکہ ریکوری صفر رہی۔ ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری کی رپورٹ۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا۔ سابق حکومت نے احتساب کا ڈھنڈورا پیٹا، لوٹی گئی دولت بیرون ملک سے لانے کے دعوے ہوئے۔ شہزاد اکبر کی سربراہی میں ایسٹ ریکوری یونٹ فعال کیا گیا، لیکن جنہوں نے پیسے واپس لانے تھے وہی قومی خزانے پر بوجھ ثابت ہوئے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کی کارکردگی صفر رہی، اربوں ڈالر قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے 35 کروڑ روپے پھونک دیے۔ شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم نے 25 غیر ملکی دوروں پر 7 کروڑ روپے اڑا دیے۔ 2018 میں ایسٹ ریکوری یونٹ کو 6 کروڑ 77 لاکھ، 2019 میں 7 کروڑ 60 لاکھ، 2020 میں 7 کروڑ 85 لاکھ اور 2021 میں 7 کروڑ 90 لاکھ کا بجٹ ملا۔ 2022 میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیے 4 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے کوئی وصولی بھی نہیں کی اور معاملات بھی ٹھپ پڑے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے ایسٹ ریکوری کی غیر فعالیت سے متعلق وزارت قانون کو مطلع کر دیا ہے۔ اور اب یہ خبر کہ حکومت نے لگژری درآمدی اشیاء کی پر عائد پابندی جو ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ درآمدی گاڑیوں، موبائل فونز اور ہوم اپلائنسز سمیت دیگر اشیاء پر 600% سے زیادہ ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ درآمدی کپڑے، جوتے، پرس مہنگے ہوں گے۔ تمباکو اور سگریٹ پر ٹیکس میں اضافے سے 36 ارب روپے ریونیو حاصل ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ تاجروں پر عائد فکس ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے۔ 29 اگست کو بورڈ کی میٹنگ آئی ایم ایف نے سیٹ کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کے بورڈ پہ پاکستان کا پروگرام ڈیبیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہوگا۔ آئی ایم ایف کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں۔ 4 بلین کی فنڈنگ بھی 3 جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ، قطر اور UAE کے تھرو حاصل ہوئی ہے۔ جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے۔ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے۔ نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا۔ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں، ساتھ 400% سے لے کر 600% تک RDs لگا دیں گے۔ میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو، خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو۔ فلی بلٹ اپ کار، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو۔ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا، ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ جو ریوائز ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے۔ 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر۔
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं गुज़िश्ता 4 साल के दौरान सीपैक को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था, एक इकोनॉमिक जोन भी नहीं बनाया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, शुक्र है पाकिस्तान उन हालात से निकल आया। 2013 और 18 के दरमियान पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि 16-18 घंटे बिजली नहीं थी और चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए अपने सरमायाकारों को इशारा किया जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। $46 बिलियन के मुआहदों पे दस्तखत हुए। एकदम दुनिया ने मुल्क को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की सूरत में देखना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि सीपैक ने पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ डाला। मैं तो ये कहूंगा ये उतना बड़ा ही झूठ है जितना बड़ा हम पे माजी में इल्जामात लगा के जेलों में डाला जाता था। गुज़श्ता 4 सालों में हम एक इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं कर सके। सीपैक को कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल दिया। बुकरात हैं और सुकरात हैं, वो शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा। पाकिस्तान को रिट्रीव कर लिया है उस सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह। बुलेटिन में बताएंगे क्या गाड़ी भी चकरा जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील काबिल समाअत होने पर ईसीपी से 24 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर पहली समाअत में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर न की। पीटीआई वकला ने FIA की जानिब से ओहदेदारों को नोटिस हरासमेंट की इंतहा करार दे दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू पीटीआई वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूल्स में गैर कानूनी फंड सिर्फ और सिर्फ जब्त हो सकते हैं। कानून में ये नहीं लिखा कि इनफरादी शख्स के अलावा किसी से फंड नहीं लेना। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कानून में लेकिन ये जरूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। सिर्फ के लफ्ज को कैसे नजरअंदाज करेंगे। जस्टिस बाबर स्टार ने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ कराना चाहते हैं। अनवर मंसूर ने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस दिए बगैर डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने कानून के मुताबिक मालूमात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से बाहर जो लिखा इसे मुअत्तल करे। जस्टिस बाबर स्टार ने कहा आप प्रीमेच्योर बातें कर रहे हैं। ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर दे। वफाकी हुकूमत जब खुद मुतमईन होगी तब आपको नोटिस करेगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ ने बेनामी और जाली अकाउंट्स ऑपरेट किए। इमरान खान ने इतराफ़ किया पार्टी रहनुमा बिला इजाज़त अकाउंट्स चला रहे थे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेनामी अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स ऑपरेट किए। ये इमरान खान ने जो दस्तावेज जमा कराई है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि 11 अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरान थे बगैर इजाजत के को ऑपरेट कर रहे थे, इसमें पैसा आ रहा था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान तोशा खाना से नीलाम की जाने वाली चीजों का रिकॉर्ड मांग लिया। कमेटी ने PSO के पेट्रोल के मयार पर भी सवाल उठा दिया। नूर आलम खान बोले कि PSO का पेट्रोल डलवा लो तो गाड़ी चकरा जाती है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। घड़ी बेची या हार, तोशाखाना से गुज़श्ता 4 साल के दौरान क्या क्या नीलाम हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेचे गए सामान का रिकॉर्ड फौरी तौर पर मांग लिया। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं दूसरे ममालिक से मिलने वाले तोहफे बराए फरोख्त नहीं एजाज होते हैं। तोशाखाने में देखे एक गिफ्ट होती है जो यादगार रहती है, लेकिन इस जब हैंड ओवर किया जाता है एक तो कागजात में उसका नाम गलत, दूसरा रेप्लिका उसमें जमा की गई है। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करते। इजलास के दौरान चेयरमैन PSE सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा पर भी बरस पड़े। बोले आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ, खुदा का वास्ता है आप भी अवाम पर रहम खाएं। नूर आलम खान ने PSO के पंप्स पर मिलने वाले पेट्रोल को भी गैर मायारी करार दे दिया। PSO के पंप्स कश्मीर हाईवे पे भी कोई और से भी आप इस पेट्रोल को भी डालें ये दूसरा डालें, वो उसमें आवाज ही फर्क हो जाती है। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि गैस कंपनियों के सरबराह 70 लाख तक तनख्वाह ले रहे हैं। गैस कंपनियों के सरबराहान और बोर्ड मेंबरान की तनख्वाह पर नजरसानी की जाए। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई पर तहरीक इंसाफ ने कल होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। अली जैदी कहते हैं तैयारी पूरी है, जलसा 26 अगस्त को होगा।
मेरी बात हुई असद उमर साहब से भी और उसके बाद चेयरमैन इमरान खान साहब से भी, तो वो हमने डिसाइड ये किया है कि वो जलसा जो 19 तारीख का है यानी कि कल, वो हम मुलतवी कर रहे हैं कराची का। हैदराबाद का जलसा भी मुलतवी करना पड़ा इसलिए कि हैदराबाद की सिचुएशन आपको पता है क्या है। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, ठट्टा, शुजावल, जेकाबाद, लाड़काना, यहाँ सब शदीद बारिशें आई हैं और सिंध का इस वक्त हाल काफ़ी ख़राब है। हमारा टारगेट अगले हफ्ते का है इंशाअल्लाह, तैयारी हमारी पूरी है। मैंने अभी उनसे दरख्वास्त की है पूरी सिंध की तरफ से, वो इंक्लाइंड है, इंशाअल्लाह वो फैसला आजकल पे दे देंगे। तो इंशाअल्लाह जेकाबाद में भी इमरान खान साहब इंशाअल्लाह कैंडिडेट होंगे। अफसोसनाक खबर दें आपको, कराची में गुज़श्ता शब बारिश के बाद मली नदी में बहने वाली कार में सवार 2 बच्चों की लाश निकाल ली गई। दीगर 5 अफराद का अब तक कुछ पता न चल सका। अंधेरे के बायस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। ये भाई है मलीर नदी में बहने वाली कार के मालिक अब्दुल रहमान जामी का, जिसकी गाड़ी गुज़िश्ता रोज मलीर नदी की बिपरी लहरें बहा के ले गई थीं। अब्दुल रहमान ने बुध की शाम कायदाबाद में तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले जीशान और उसकी फैमिली को लेकर वापस हैदराबाद का सफर किया था, मगर नेशनल हाईवे को मोटरवे से मिलाने वाले लिंक रोड पर गाड़ी को ले जाना अब्दुल रहमान का आखिरी सफर बन गया। ये किसी पर्सनल काम से आया था, किसी दोस्त ने बोल दिया यार मेरी फैमिली को उठाते हुए ले आइयो यार। किसी दोस्त ने फोन करा, पता नहीं कौन सा दोस्त है, 12 मोहल्ले की फैमिली थी ये। बहने वाली कार में गाड़ी के मालिक अब्दुल रहमान के अलावा जीशान, उसकी अहलिया और 4 बच्चे भी शामिल थे। कल 8-9 बजे हमें पता चला है कि ये हैदराबाद के लिए निकले हुए हैं। उसके बाद से वही राब्ता करने की कोशिश की काफ़ी उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राब्ता हो नहीं सका है। मकामी अफराद का कहना है कि लिंक रोड के दरमियान से मलीर नदी गुजरती है और जब भी बारिशें होती हैं नदी का पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। मलीर नदी में बहने वाली कार में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से था, जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में कराची आए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कोहे सुलेमान पर होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ के मज़ाफ़ाती इलाकों में तबाही मचा दी। कई शहरी आबादियाँ और सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। लैंड स्लाइडिंग और छतें गिर जाने से 6 बच्चे जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। अख्तर अली की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ के मज़ाफ़ाती इलाकों में तबाही के मनाजिर। फसलें तबाह हो गई, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, जानवर मर गए, सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। गवर्नमेंट को खुदाई करन सारा तबाही पट्टी वही है, फसल माल जलील माल को निकलन कोरोना का नाके से नहीं काट सकते मैं रेस्क्यू के बगैर, लिहाजा गुजारिश है जल्दी जल्दी रेस्क्यू को एक्टिव किया वजह हाल। कौमी शाहरा इंडस हाईवे टब्बी केसरानी के मकाम पर सैलाबी रहले में बह गई। बैन सूबाई शाहरा कोयटा रोड नीली मिट्टी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। फैसलाबाद में तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबा का कहना है कि उसे शेख दानिश से शादी ना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। समा से गुफ्तगू में बोली कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुल्जिम की बेटी को भी गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने मेरे साथ जो ये सारा तशद्दुद किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने शादी से इनकार कर दिया था। मैंने दानिश साहब का प्रपोज़ल रिजेक्ट किया जिसके ऊपर इन्होंने ये सब कुछ किया और जानवरों से भी बदतर सलूक। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, मुझे इन सब ने मेरे घर के अंदर से किडनैप किया है और मुझे सब ने मारा है। जो जो FIR में मेंशन है इन सब ने मुझे मारा है। मैं तो इंसाफ चाहती हूँ इन सब से और प्लीज़ आप लोग काइंडली आना को भी अरेस्ट करें जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। अपने गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले राहत फ़तेह अली खान खुद झूमते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की कहानी नवीन अली की ज़बानी। इकबाल ने की भी मेरी जान मेरा नुसरत फ़तेह अली खान, ये बात विलायती शहद का असर या खांसी का शरबत, मेरा नुसरत फ़तेह अली खान। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान नजर आए एक नए रूप में। हाजी इकबाल ने की भी जाम बढ़ा या नजर से पी मालूम नहीं, लेकिन अंदाज जरूर बदल गया। इससे कोई भिड़े मत, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। दोस्ती की
गवाही देते हुए राहत फतेह अली खान नाराज फिल्मी हीरो के रूप में दिखाई दिए। इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, जान है, जान है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फैंस ने भी दिलचस्प कमेंट्स दे दिए। नवीन अली, समा, लाहौर। हम एक हैं। और पाकिस्तानी टीम की जीत के बाद रॉटरडैम में मौजूद शायकीन जमकर जश्न मना रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं स्टेडियम के बाहर मौजूद समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। जी कादिर ख्वाजा, अपडेट कीजिएगा, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त मैं रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। पाकिस्तान ने सीरीज जो 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल थी वो 2-0 से अपने नाम की है और सलमान अली आगा, बाबर आजम, रिजवान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया और मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये सीरीज बहुत अच्छी हुई है, हमें देखने में मज़ा आया है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही खेलेंगे, इंडिया को हम इंशाल्लाह ताला हराएंगे। ये यहाँ पर जो है वो सब्ज लाली परचम जो है वो उसमें शर्ट में मलबूस है। सर ये बताएं कैसा लगा, कौन सा फेवरेट प्लेयर है और कितना शोरगुल किया आप लोगों ने यहाँ पे, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम बहुत सालों बाद आई है, मेरे ख्याल से 2002 में आखिरी दफा आई थी यहाँ पे, और हमारा सुपरस्टार बाबर आजम है। देखने पब्लिक कितनी उसके लिए क्रेज है उसका। बहुत शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। उनका कहना है कि बाबर आजम के बाद जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन मिला है वो सलमान अली आगा है, जिन्होंने आज निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद अब जो है वो 2 दिन का गैप है, उसके बाद इतवार को तीसरा और आखिरी वनडे मैच रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।